Hi guys, good evening. Can you hear my voice? If you can hear my voice, just type one. If you can hear my voice, just type one so I know. Yeah, thanks. I think we got lovely people. We got Jayesh, we got Daman. Let me see who all will say at least hi to me. Okay, you have Daman who's there. Then we Irban. Okay, Jayesh we have. Akruti we have again. She's lovely. Sunita we have. So we have a good group here, and. Ishika, yes, Ishika, hi. Paresh, hi. So I don't want to waste time much on exposing myself. Yeah, Nikita, thank you. Thanks. Okay, if you can just type which city are you from? So let's understand from which all city people have come. Hi, Das, how are you? Just type the city. Okay, we have somebody from Delhi, from Thana, Gurgaon, wow. Raymond from Mumbai, yes. From Pune, of course. Vadodara, Virar, Assam. Wow, Assam. That's one place which I want to go and visit Assam. Calcutta, okay, wow. Virar. So, guys, the idea is we have people from all over and all are welcome to this lovely meeting. And the best part of our meeting is we always like to do something different. So, just to tell you, we have today is a doctor's day because many people question me, okay, I've got arthritis, I got asthma, I got this problem, that problem, and they ask me. So it all goes over my head. It's like a bouncer for me. And I don't know head to table all these diseases. So I said, by the way, just to reconfirm, we are not a medical company. We don't sell medicines. So, but we have nutritions. And what I said, instead of me talking, let me get somebody who has a knowledge on this topic. So Medha Deshpande, our doctor who's there for today, she is amazing. You know why I like her especially? Because she's so active, not just with knowledge, but active in all the achievements. Most of the achievements whichever the company has given, she has uh, gone for it. So it's very good. So what I'll do is instead of me, let me get her. Uh, Make co-host, okay? So I made Medha the co-host and I'll now add her also. Wait a minute, I'll just put your view profile. Okay. So I'll remove my face and get her on the spotlight so that she can do wonders with this business and the setup. So I'll go mute. I'll close my video and we'll get Medha. Yeah, Medha, can you start your video? Your video is off. Yeah, thank you. Good evening, Simon sir, and good evening, everybody, whoever is present here. Medha, one thing, Hmm. I'm sorry I'm going out of the topic. At this age also, you're so beautiful, so charming, and more Thank you. so active, which I've noticed you because I heard you recently went for the Baku trip, which was from the company, and I have my agents everywhere, like you have CIA, whatever. So I have my agents, and I came to know you qualified for another two trips. So before that, if you can just introduce yourself and let us know about those trips also. Hi, guys. I am Dr. Medha Deshpande. I am with Forever Living Products for more than 14 years now, and it has been an amazing journey. And you can see my transformation at the age of 60. Normally, ladies don't want to disclose their age, but proudly I disclose my age. I am doctorate in nutrition and practicing for last 40 years, married happily for 36 years and doing forever more than 14 years. And I like to help people health wise, and automatically by default, marketing plan of forever can make you wealthy also. And here I would like to share in 2 minutes about why I joined forever. I had a very long challenge of arthritis,
It was in my family. It's a genetic disorder I had carried from my grandmother, my father had, then I had. I was not able to sit down even for prayers also. And it was such an embarrassing situation for me because being a nutritionist, I'm not able to take care of myself. That was around 15 years back. And then one angel girl from Pune, she introduced me with this business. And I started with the products and I got the results. Now I can run, I can jog, I can do trekking also. Recently, I completed Harishchandra Ghat trek also. And as Simon sir very rightly said, in 2024, Forever India had introduced two amazing new incentives, very new incentives for the first time in the history of Forever. One was Vacation Wonders Domestic that I had qualified, and recently I'm back from Baku. That was Vacation Wonders Magnificent Baku. That also I qualified. And 4x7 is also newly introduced. Three trophies I got in 2024. So these three new, small, but very precious achievements I have with me in 2024. So I am all geared up to welcome 2025। और मैं सब आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी इंग्लिश में मिक्स बोलूंगी। कभी कभी कुछ लोग साउथ से ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलूंगी, पर हिंदी में मैं प्रेफर करती हूँ। और आई थिंक हिंदी इज कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी। सो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सर यू कैन स्टार्ट द स्क्रीन, साइमन सर। Yeah, I'll do that. Right. और सबसे पहले तो फॉर एफएलपी टीम का साइमन सर, राजीव सर, जयेश सर और सारे सीनियर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। 15 साल पहले मैं नेट मीटिंग्स अटेंड करती थी पूना में। ये लोग सब मुंबई से आते थे और मैं पुणे में बैक बेंचर की तरह पीछे बैठ के फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मैंने समझी, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान मैंने समझा, एक बार नहीं कई कई बार, और प्रोडक्ट्स के भी सेशन समझे। क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट होने से फॉरएवर नहीं समझ में आता, तो मेरे को तो फॉरएवर समझ में आया है यहाँ आने के बाद ही। और ये सभी लोगों का, सभी सीनियर लीडर्स का इसमें योगदान है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और सबके आशीर्वाद लेके चलती हूँ। तो आगे चलते हैं हम लोग कुछ सवालों की तरफ। तो कुछ तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन सभी के मन में होते हैं, डाउट्स होते हैं। इंसान है तो डाउट्स आएंगे ही आएंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि व्हाई वी शुड टेक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, लेना चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो One मैं minute, तो one minute. I'll just put the PowerPoint again because it's not sliding next. I'll just हाँ, check. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई विल गो विद द फ्लो, कोई Yep. दिक्कत नहीं है। इसके भी पहले कुछ था, एफएक्यूज थे अब्दुल के पहले। तो एफएक्यूज में तो यही होता है, जैसे मैं भी बात कर रही थी कि हम लोग तो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, मैगी और जो भी कुछ जंक फूड मिलता है सो कॉल्ड हेल्दी, वो वाला भी हम खाते रहते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है? तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसलिए जरूरी है कि जो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में और हमारी ओवरऑल हेल्थ में स्पेशली वो हेल्पफुल होते हैं। तो इसे कौन कौन ले सकता है? तो प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन तो ले ही सकती है। फिर आप लोग सोचोगे यहाँ बैठे हुए ज्यादा से ज्यादा लोग काफी यंग है, वो सोचेंगे हम नहीं ले सकते। यस, बिल्कुल ले सकते हैं। यंग चिल्ड्रन, एल्डर एडल्ट्स सभी ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियंस है, जो लोग वेगन्स है, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की उनको कमी महसूस हो सकती है। और इसी के साथ साथ पीपल हु आर ऑन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब कुछ फैट डाइट्स पे चले जाते हैं या किसी ना किसी वजह से रेस्ट्रिक्टेड डाइट किसी की सलाह लेके भी कर लेते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। और पीपल विथ सम हेल्थ कंडीशंस, पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशंस, कोई सफर कर रहा है, कोई चैलेंजेस है, तो ऐसे लोगों को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और हमारे आपके जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो हेल्दी और अच्छे से अच्छा हेल्दी लंबे समय तक बने रहने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है।
और जैसे कि हम सब जानते ही है, फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूंगी कि अपने हवा, पानी, खाना सब कुछ तो शुद्ध नहीं बचा है, और काफी सारा पोल्यूशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, रोटेशन में क्रॉप्स लिए जा रहे हैं, पानी भी पोल्यूटेड है, एयर भी पोल्यूटेड है। तो फिर ऐसे समय में न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत हमें महसूस होती है, क्योंकि खाने पीने की जो चीजें हैं उसके अंदर की पोटेंसी कम हो गई है। पोटेंसी मतलब क्षमता, या जो 100 ग्राम गेहूं खा के या 100 ग्राम दाल खा के या एक अंडा खा के मुझे पहले जितना न्यूट्रिशन मिलता था उतना आज नहीं मिल रहा है प्योरेस्ट फॉर्म में। इसलिए फिर सप्लीमेंटेशन की जरूरत तो बेहद महसूस होती है। तो फिर ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज 46 ईयर्स से 168 कंट्रीज में से ये काम कर रही है कि भाई कैसे लोगों की सहायता करे इस मामले में। तो एक विजनरी थे मिस्टर रेक्समोन, उन्होंने ये कंपनी की स्थापना की थी। उनको याद करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाती हूँ मैं। साइमन सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस तो हो गए। फिर एक सवाल था कि भाई किस एज में लोग क्लेंजर्स और फेस क्रीम्स फॉरएवर के यूज कर सकते हैं। 0 to 100 ईयर्स, जब तक इंसान जिंदा है वो सभी हमारे क्लेंजर्स और प्रोडक्ट्स विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी क्वेश्चन आराम से यूज कर सकते हैं, ऑल एज ग्रुप्स। क्योंकि फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है और एलोवेरा बेस्ड है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एलोवेरा के अंदर एक पेनिट्रेशन पावर है, और उसका पीएच बैलेंस होने के कारण सारे स्किन कंडीशंस के लिए वो सूटेबल है और सारे एज ग्रुप को भी सूटेबल है। नेक्स्ट सर। There's another question below this. ओके, वही वो हो गया ना। नहीं, उसमें लिखा ना, डॉक्टर्स हैव सेड नॉट टू टेक। हाँ, डॉक्टर्स हैव सेड, ये तो कॉमनली आस्क लोगों के मन में होता है कि मेरे डॉक्टर, किसी को भी हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं न्यूली ज्वाइन करके, एफबीओआईडी बन गई, 2 सीसी हो गए, उसके बाद आप किसी के पास चले जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को स्किन चैलेंजेस है। जैसे ही आप उनको प्रोडक्ट लेके रिकमेंड करने लगते हो, वो क्या बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने मना किया है, उन्होंने बोला है मुझसे पूछे बिना इस ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन के अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो जैसे साइमन सर ने पहले ही बोला है, वैसे मैं भी और एक बार बोलूंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स दवाई नहीं है। आर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन, और ड्रग्स आर प्रोडक्ट्स आर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो नेचुरल है, जिसके अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, सारे इंग्रेडिएंट्स क्लियर कट मेंशन्ड है। और इंडिया में जो जितने भी सप्लीमेंट्स या जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं फॉरएवर के, सबके ऊपर FSSI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया का भी सर्टिफिकेशन है, जो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो यदि आपके डॉक्टर्स को डाउट है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डॉक्टर को वो दिखाओ, दिखाओ अच्छे से प्रोडक्ट, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो जिस किसी पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, आपके सीनियर को आप लेके जा सकते हो, वो समझाएंगे, जो आपका सर्विस सेंटर होता है, क्योंकि उनको थोड़ी प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपसे ज्यादा होती है, तो दे विल बी एबल टू कन्विंस। आपके सीनियर नहीं तो उनके सुपर सीनियर से भी आप जूम कॉल करवा सकते हो। आजकल तो बहुत सारे तौर तरीके अवेलेबल है, तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी उसका नॉलेज होता है। पर कभी कभी क्या होता है, उनको सप्लीमेंट्स का या स्किन केयर के, नेचुरल स्किन केयर का, ऑर्गेनिक स्किन केयर का इतना नॉलेज नहीं होता है जितना हम फॉरएवर में सीख जाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोडक्ट्स का नॉलेज अच्छे से अच्छे लो, और फिर आप उनको कॉन्फिडेंटली बता पाओ। ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। I think the नेक्स्ट। next question is also the same, in other words, यस। right? So I'll go to the next slide. यस, यस। कैन वी स्टॉप द मेडिसिन आफ्टर स्टार्टिंग योर सप्लीमेंट्स? तो ये आंसर तो नो है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ड्रग्स और मेडिसिन नहीं है। तो आप कोई भी आपके मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बिना बंद मत कीजिए, आप लेना स्टार्ट करो। एंड देन यू कैन गेट योर लैब टेस्ट डन, यू कैन गेट योर ब्लड टेस्ट डन। उसके बाद में लेट योर फिजिशियन डिसाइड कितना स्टॉप करना है, या डोसेज कम या ज्यादा करना है, या फ्रीक्वेंसी कम करनी है, पर आप अपने डिसीजन खुद मत लेना। ठीक है। Yes, Dr. Anuratha is also supporting my statement. She is a amazing doctor with us. ठीक है। नाउ एक हमारे शबनम जी है, शबनम निशा जी, उन्होंने कुछ सवाल पूछा हुआ है। हार्ट, थैंक्स डॉक्टर अनुरिता। शबनम निशा जी पूछते हैं कि हार्ट पैल्पिटेशन के बारे में उनका एक सवाल है। तो पैल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन। गाइस, दिल की धड़कनें कब कब बढ़ती है?
आप खुद सोच सकते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारी एंजाइटी बढ़ती है, जब हम किसी चाहने वाले का इंतजार कर रहे होते हैं बहुत बेसब्री से, या फिर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हम करते हैं, तब हमारे पैल्पिटेशंस या दिल की धड़कनें बढ़ सकती है। या फिर कभी कभी लैक ऑफ स्लीप है, अल्कोहल या ड्रग्स बहुत ज्यादा कोई इंडल्ज कर रहा है, तब भी पैल्पिटेशंस बढ़ सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो इसमें पैल्पिटेशन बढ़ सकती है, ये सिचुएशन हो गई। इसी के साथ साथ उन्होंने पूछा हार्ट वीक होता है, हार्ट का जो मसल है वो वीक है, तो कभी कभी मेनोपॉज में या ओवर एक्टिव थायराइड होता है, उस केसेस में भी हार्ट वीक हो सकता है। और तीसरा उन्होंने पूछा है कि हार्ट के नजदीक कुछ गर्म या हॉट हॉट ऐसे महसूस होता है, तो वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। तो आप यदि एलोवेरा इंट्रोड्यूस करते हो अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, तो डेफिनेटली एसिड रिफ्लक्स से आपको निजात मिल सकती है। तो ये 3 कंडीशंस है, तीनों ही हार्ट की कंडीशंस के लिए आपको एलोवेरा आरजी आर्टिक ले सकते हैं। 100 ml एलोवेरा तो आप बिल्कुल आंख बंद करके डेली लेना है। 10 ग्राम आरजी प्लस होता है, वो चाहे तो आप 2 भाग में डिवाइड करके ले सकते हो या एक ही साथ ले सकते हो। आर्टिक 1 या 2 ले सकते हो। ये तीनों को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये जितने भी हार्ट के पैल्पिटेशंस है, या हार्ट का वीकनेस है, या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर ब्लॉकेजेस है, या फिर किसी को जोड़ों का दर्द भी है, तो ये सारे ही लोग ये हार्ट की इसके लिए ले सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा है शबनम निशा जी ने कि मिल्क, कुछ लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। तो आपके सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई कोई लोग जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब दूध के अंदर का जो शुगर है लैक्टोज, मिल्क वाला, तो वो नहीं पचा सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, कभी कभी ब्लोटिंग होती है, नॉजियाटिक फील होता है, या फिर कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि जैसे ही मेरा बच्चा दूध पीता है उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, मतलब कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे होता है। और इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन को पता नहीं है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो एक तो डॉक्टर राव है, उनको पद्मश्री मिली हुई है इस विषय में। तो वो बोलते हैं कि किसी को कुछ बीमारी हो रही है, किसी को कुछ हेल्थ चैलेंज हो रहा है, किसी को अर्थराइटिक पेन है, किसी को इन्फ्लेमेशन है, तो 3 महीने तक आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे छोड़ के देखिए, एंड यू विल गेट रीड ऑफ ऑल योर चैलेंजेस। तो करके देखने जैसी चीज है, आजमा के देखो। बिकॉज हमारे देश में क्या होता है, कोई एलर्जी टेस्ट करता नहीं है, कोई इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करता नहीं है कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेटर कि आप मिल्क अवॉइड करके देख लो, आपको अच्छा लग रहा है तो उसको छोड़ो, यदि कुछ नहीं हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू। क्योंकि अभी मिल्क की भी तो क्वालिटी डिटीरियरेट हो रही है। साइमन सर अपने कम्युनिटी में डालते रहते हैं बार बार कि कैसे कैसे अडल्ट्रेंट्स होते हैं मिल्क के अंदर, और फिर ऑक्सीटोसिन वगैरह जानवरों को दिया जाता है तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सो कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि दूध ना पियो। और ट्रेडिशनली तो हम दूध पीते हुए आए हैं, तो लोगों को ये मुश्किल है समझाना या फिर डाइजेस्ट होना ये कॉन्सेप्ट कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। तो लेट योर बॉडी डिसाइड। आप लोग थोड़ा थोड़ा डोज कम करके, या 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए कम करके देखिए, आपको अच्छा लगा तो आप छोड़ सकते हो। और लैक्टोज इंटॉलरेंस का भी टेस्ट होता है, दैट यू कैन गेट इट डन। तब भी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि है प्रॉब्लम या नहीं है। नहीं है प्रॉब्लम तो ले लो। और आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपको वेट नहीं बढ़ाना है, तो वैसे ही आप दूध कम लोगे। तो दूध के अलावा कैल्शियम के, विटामिन डी के बहुत सारे सोर्सेस है। तो ऐसा नहीं है कि दूध पियोगे तभी स्वस्थ रहोगे। तो देर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उसी में एक है, विच प्रोडक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर हार्ट वाल्व्स। अच्छा, हार्ट के संबंधित मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ना ड्रग्स और मेडिसिन नहीं है। ये डॉक्टर अनुरिता का भी एक सेशन एक बार हम रखेंगे, वो एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट है और वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं तो यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको हार्ट से संबंधित, तो इट्स बेटर टू सी कार्डियोलॉजिस्ट। क्योंकि हम रैंडमली उनको हमारे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी एलो आरजी आर्टिक सी तो मैं रिकमेंड करूंगी। और ईट हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट मतलब ओमेगा से भरपूर डाइट लो आप।
और जिसमें आप सैलड वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन रखो, तब ये हार्ट के संबंधित सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती है। बाकी रैंडमली कुछ भी आप ब्लॉकेजेस के बारे में पूछोगे तो दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसकी टेस्ट करनी पड़ती है, देखना पड़ता है ब्लॉकेजेस है नहीं है। पर इवन विदाउट दैट आप एलो आरजी आर्टिक्सी तो आराम से दे सकते हो, उसमें मन में कुछ संदेह रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जीनत जीनत अनीसा अहमद, ये मैडम पूछ रही है कि उनको कंटिन्यूअस कफ एंड कोल्ड की शिकायत रहती है। और अभी ये जो इस तरह के सवाल आप लोगों ने पूछे हैं ना, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि कभी भी ना केस हिस्ट्री मेंटेन करिए कि को पेशेंट है या जो भी प्रोस्पेक्ट है या जो भी एफबीओ है, उनकी केस हिस्ट्री मतलब एज ग्रुप क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, फूड हैबिट्स कैसी है, उनको कुछ फूड एलर्जीज है क्या, उनके जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, फैमिली में किस तरह वो रह रहे हैं, और उनकी प्रोफेशन क्या है। क्योंकि कई बार प्रोफेशनल हेल्थ हजार्ड भी, उसका भी कफ और कोल्ड हो सकता है, क्योंकि जैसे टेक्सटाइल के मिल के अराउंड रहने वाले लोगों को कफिंग का हो सकता है, या केमिकल फैक्ट्रीज के अराउंड रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। तो आपको केस हिस्ट्री अच्छे से लेनी है। हम किसी को कुछ भी इंटरनल कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं ना, थोड़ा सा उनकी जानकारी लीजिए पहले, और उसके बाद आप रिकमेंड कर सकते हो। तो ये तो है, पर एलो और आरजी तो आराम से दिया जा सकता है, 50 ml मॉर्निंग, 50 ml बेड टाइम। फिर कफ एंड कोल्ड के लिए आप एलो टर्म दे सकते हो, 2 लॉजेंजेस, एलो टर्म इजीली अवेलेबल है इंडिया में। सी प्लस की एक टैबलेट दे सकते हो जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। इम्यू ब्लेंड आप दे सकते हो बिफोर ब्रेकफास्ट, और या ब्रेकफास्ट के साथ में और बेड टाइम। और हीट लोशन के साथ आप मसाज कर सकते हो चेस्ट में, और जहां कहीं आपको कफिंग ज्यादा हो रही है या कोल्ड ज्यादा हो रहा है तो चेस्ट, नोज और फोरहेड में आप आराम से मसाज कर सकते हो हीट लोशन का, या फिर स्टीम भी ले सकते हो, और आपको आराम मिलेगा। और बहुत ज्यादा समय तक नहीं हो रहा है ठीक, तो इट इज अ गुड आइडिया टू सी योर फिजिशियन ऑल्सो, ये तो मैं विथ अंडरलाइन हमेशा कहूंगी, बिकॉज ये हेल्थ का मामला है और हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, और सारे एफबीओस तो डॉक्टर्स भी नहीं होते और मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर हमारा फर्ज बनता है हमेशा देना। पर आराम से हमारे सप्लीमेंट्स आप कफ और कोल्ड को जो मैंने बताया वो दे सकते हो। अभी डोसेजेस, बिकॉज ये कोई मेडिसिन नहीं है तो इसका डोसेज ऐसा कुछ होता नहीं है, पर एलोवेरा के बॉटल के ऊपर ही लिखा हुआ है 100 ml पर डे कंज्यूम करना है, 10 दिन में एक बॉटल खत्म करना है। तो आपको 100 ml एक साथ नहीं लेना है तो 2 बार डिवाइड करके लो या 3 बार डिवाइड करके लो, पर लेना है। और उसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है तो आराम से ले सकते हो। अच्छा, किसी को कोल्ड की शिकायत है तो आप बाहर रखो, ठंड के दिनों में तो आप बाहर रख सकते हो, रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में नहीं रखना है तो। और एकदम शुरुआत में, दिन के एकदम शुरुआत में ना लेते हुए मिडिल में भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा किसी को कोल्ड है और नहीं सूट हो रहा है तो। ठीक है, तो ये तो हुई बात। माइग्रेन का उन्होंने एक पूछा है, हाँ माइग्रेन का पूछा है उन्होंने। माइग्रेन का भी यही है कि एज ग्रुप क्या है वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्टर और गार्लिक थाइम है हमारे पास, फील्ड्स ऑफ ग्रीन है और आर्टिक्सी है। ये प्रोडक्ट्स आप उनको आराम से देना स्टार्ट कर सकते हो। और उनको ना थोड़ा लाइट और रोशनी, जो तेज रोशनी होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट से थोड़ा बच के चलना है माइग्रेन का, जिसको भी प्रॉब्लम है। माइग्रेन का नॉर्मली क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। वो मतलब माइग्रेन को ट्रिगर करता है, हार्मोनल चेंजेस किसी के होते हैं तो ब्राइट लाइट अवॉइड करना है, अवॉइड अल्कोहल। और एस्पार्टिन जैसे स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो अवॉइड करना है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइटरी पैटर्न मेंटेन करके चलना है। और मैं तो बोलूंगी स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेस और टेंशन्स, ये सभी बीमारियों की जड़ होता है। कभी कोई भी जो डिसऑर्डर है या कोई भी हेल्थ चैलेंजेस है वो हमेशा ही साइकोसोमेटिक ओरिजिन का होता है। तो अपने मन को प्रफुल्लित और हैप्पी रखने की कोशिश करिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये भी आप कर सकते हो तो आराम से। और अब हमारी सप्लीमेंट्स अच्छा रोल अदा करेगी, साथ में आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक है कल्पेश टिनी का भी एक सवाल था ना। I think we'll go by with the flow. ओके, हम्म, ओके। AK Seshu Jagannath, sir, are you comfortable with Hindi or should I speak in English?
which FLP products are good for skin diseases? अभी इन्होंने ना जनरलाइज्ड स्टेटमेंट किया है, स्किन डिजीजेस कई प्रकार के होते हैं और कोई टेम्पररी ओरिजिन के होते हैं, कोई किसी चीज की एलर्जी की वजह से या कम पानी पीने से या कभी हॉट सीजन में या गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके उसके साइड इफेक्ट होने से या अलग अलग प्रकार के स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। तो आपने कुछ स्पेसिफिकली ऐसा पूछा नहीं है, तो आई विल से कि यू हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई विच स्किन कंडीशन है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी स्ट्रांगली एलो लिक्विड सोप, हमारा आराम से आंख बंद करके यू कैन यूज इट। और एवोकेडो सोप है या कितने भी फॉरएवर के जितने क्लेंजर्स है सभी के पीएच बैलेंस है, सभी का एलो बेस्ड है, तो आराम से आप यूज कर सकते हो सारे क्लेंजर्स। और उसके बाद में स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, तो जेली और प्रोपोलिस मिक्स करके लगा सकते हो। स्किन ड्राई है तो अल्फा ई फैक्टर भी मिला सकते हो उसके अंदर थोड़ा सा। और सप्लीमेंट्स के तौर पे आप C+ की टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हो। आर्टिक सी और बी पोलन भी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन बिकॉज यू हैड नॉट स्पेसिफिकली सेड विच स्किन कंडीशन, बट रैंडमली किसी भी कोई भी स्किन चैलेंज आपको फेस हो रहा है तो ये सारी चीजें आप यूज करोगे तो 1 से 2 महीनों में आपको फर्क डेफिनेटली महसूस होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक एलोवेरा और नेक्टर इन द मॉर्निंग 100 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। कल्पेश किनी जी, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है सोरियासिस का। तो सोरियासिस ये कभी कभी जेनेटिकली इनहेरिट होता है और मोस्टली वो कुछ मेंटल टेंशन से स्ट्रेस होता है या जिस किसी को आप बता नहीं सकते इस तरह की किसी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो, तो आपकी स्किन रिएक्ट करती है, आपकी स्किन बोलती है, उसकी वजह से भी सोरियासिस होता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर उसमें आप आर्टिक सी, बी पोलन, एलोवेरा जेल, C+, जेली और प्रोपोलिस टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, फिर हमारा एलो लिक्विड सोप और एलो क्लेंजर, इसी के साथ साथ एवोकेडो सोप, और हमारे पास 2-3 प्रकार के मॉइस्चराइजर्स है। चॉइस इज योर्स। सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैंने दी है। जिस किसी के घर में सोरियासिस है ये सारे प्रोडक्ट्स रखना जरूरी है। आर्टिक सी, बी पोलन, एलोवेरा जेल, C+, जेली प्रोपोलिस, लिक्विड सोप, एलो क्लेंजर्स, एवोकाडो सोप एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और कपड़े अपने डेली धोना जरूरी है। जिस किसी को सोरियासिस है, ऑल्दो इट इज नॉट कंटेजियस, पर कभी कोई स्किन चैलेंज किसी को फेस हो रहा है तो ऑलवेज कीप योर क्लोथ सेपरेटली, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे डिटर्जेंट की भी आपको एलर्जी हो रही है, तो अलग अलग धो के सुखाना जरूरी है। या C+ बोला ना मैंने, C+ बोल दिया है ऑलरेडी, तो ये सब जरूरी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आकृति रस्तोगी जी पूछ रही है, इन्होंने 2-3 हेल्थ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की है। पहले तो डायबिटीज इन्होंने बोला है। अगेन उसके लिए भी मैं बोलूंगी डायबिटीज कई प्रकार के होते हैं, डायबिटीज के लिए अलग अलग एज ग्रुप का जानना जरूरी है। उसके हिसाब से हमें सोच समझ के थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके हमारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने होते हैं। पर इन जनरल आप डायबिटीज के लिए एलोवेरा जेल, फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन, आर्टिक सी, बी पोलन और गार्लिक थाइम, ये सब दे सकते हो। और ये फिर भी आपकी PP कौन सी, शुगर कितनी है, HbA1c कितना है, फास्टिंग कितना है, ये सब थोड़ा देखना होगा। और यू कैन कंसल्ट योर सीनियर ऑल्सो, वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसके बाद में आप देना स्टार्ट करो। पर ये सारे प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी डाउट्स। और अगेन डायबिटीज वालों के लिए मैं यही कहूंगी, गुड डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, और बहुत जरूरी है वो, बिकॉज एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल दीज डेज आर कैचिंग ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं ना, तो ये कहने के लिए 2 शब्द है, ओनली 2 वर्ड्स, पर एक बहुत गहरा, बहुत मीनिंग है जिसको बहुत डेप्थ है। कि लाइफस्टाइल मतलब सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक आपका क्या रूटीन है, आप कितना सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, किसके साथ खा, कंटिन्यूअस आपकी नसें खिंची हुई है क्या, बॉस आपका मतलब टेंशन दे रहा है कि आपको, या आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का बर्डन है क्या, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स ये सब, जीवन शैली। तो एक अच्छी जीवन शैली रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, फॉरएवर के सप्लीमेंट्स, फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स आपको 100% हेल्प करेंगे। तो ये हो गया डायबिटीज के लिए। और आकृति का नेक्स्ट सवाल है PCOS के बारे में। तो PCOS ये गर्ल्स, यंग गर्ल्स के अंदर ये कंडीशन होती है, ये चैलेंज। तो एक सबसे पहले तो आप फास्ट फूड, जंक फूड खाना छोड़ दीजिए, मैदे से बनी हुई चीजें ना खाओ,
पानी अच्छे से पीना है। बेरी नेक्टर जो है, एलोबेरी नेक्टर बहुत अच्छा होता है। इंडिया में प्रोपोलिस टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है, पर आप कहीं से अवेलेबल करा सकते हैं, तो प्रोपोलिस टैबलेट्स को आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ आर्टिक सी भी आप यूज कर सकते हो, और फील्ड्स ऑफ ग्रीन और सी प्लस भी यूज कर सकते हो। तो पीसीओएस में आपको फायदा मिलेगा। और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, पेट के व्यायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सारे कोई काउच पोटैटो बन गए हैं, एक ही जगह बैठ के हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसके चलते ये सारी हेल्थ कंडीशंस अराइज हो रही है। तो अगेन आई वुड से मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डोंट फॉरगेट टू टेक योर एलोवेरा। ठीक है, डेली लेना है बेरी नेक्टर पीसीओएस वालों को, और आर्टिक सी भी डेली लेना है। तो मेजर वो है कि एलोवेरा तो हमारे सेल्स को रिजुविनेट करता है, और कई सारे ढेरों बेनिफिट्स है। हम किसी प्रोडक्ट के सेशन में उसकी चर्चा जरूर करेंगे। आज का तो सवाल जवाब का सेशन है, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। और आपके सेल्स का मेम्ब्रेन जो है वो ओमेगा का बना होता है। तब यदि एलोवेरा का कोई भी फ्लेवर किसी ड्रिंक आप ले सकते हो अलोंग विथ आर्टिक सी, तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाएगी। और विटामिन सी बॉडी बना नहीं सकती है, स्टोर नहीं कर सकती है, तो डेली सी प्लस भी लेना है। ये 3 चीजों भी आप ले लो, और आपको थोड़ा बहुत कभी जॉइंट की तकलीफ हो तो आर्टिक सी भी ले लो, तो आपकी ये प्रॉब्लम से छुटकारा आप पा सकते हो। तीसरा सवाल आकृति ने पूछा था जॉइंट्स और बोन्स के बारे में। बोन्स और जॉइंट्स की जो समस्याएं होती है ना, वो सीधा रिलेशन उसका आपके डाइट के साथ है, और थोड़े बहुत प्रमाण में जेनेटिक्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो जॉइंट केयर कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है। आप एलो स्टोर इंडिया पे जाओ, या फिर आप ऐप के द्वारा वो कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो जॉइंट केयर कॉम्बो है, वो वैसे के वैसे आप लेके आ सकते हो। या फिर आपको सेपरेटली प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है, तो नेचर मीन एक बहुत अच्छी सप्लीमेंट है, जो नेचुरल मिनरल्स की सप्लीमेंट है, और वो सभी के लिए जरूरत है। मतलब आप किसी चैलेंज को आने का वेट ना कीजिए, आप आराम से ये सभी को रिकमेंड कर सकते हो। नेचर मीन, आर्टिक सी, एक्टिव एचए है। हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, वो हमारे शरीर में होता है पॉकेट्स के अंदर, जॉइंट्स में, कार्टिलेजेस में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या हमारी लाइफस्टाइल गंदी है, सिडेंट्री है, और अच्छा डाइट भी नहीं है, तो वो कम बनता है हेल्यूरोनिक एसिड। तो एक्टिव एचए के सप्लीमेंट भी हमारे लगभग अभी 2 महीने 3 महीने पहले तक सारे कॉम्बो के अंदर एक्टिव एचए आ ही रहा था। तो वो तो एक प्रोडक्ट सबके घर में होगा जिनके भी पास न्यू एफबीओज है। तो एक्टिव एचए को जरूर से आप जॉइंट्स और बोन्स के चैलेंजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ सी प्लस आप इस्तेमाल करो। फॉरएवर फ्रीडम एक ड्रिंक है हमारे पास, वो बहुत अच्छा है फॉरएवर में। और यदि टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा सा आराम चाहिए, तो हीट लोशन, एमएसएम और कूलिंग लोशन, ये तीनों चीजें हैं। तो जॉइंट्स और बोन्स के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने रिकमेंड किए हुए हैं। तो आप लेना स्टार्ट करो, और लेने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मॉनिटरिंग भी आपको स्टार्ट रखना है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय में सवाल पूछना है, कैसे लग रहा है, आप फॉलो कर रहे हो क्या डाइट लाइफस्टाइल। क्योंकि कुछ लोग लेके प्रोडक्ट्स खरीद के बैठ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा उस मोड में लेके जाना होता है। शुरू में तो डेली पूछती हूँ मैं लोगों को, ले रहे हो क्या एलोवेरा, मॉर्निंग में आपने एलोवेरा लिया, कैसे लगा। क्योंकि शुरू शुरू में किसी को वो एक्सेप्ट नहीं होता, कितना भी पोटेंट न्यूट्रिशन हो, हमारी सेल्स भी ना एकदम से जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जो खाना हम लगातार बार बार सालों साल से खाते आ रहे हैं, उसको हम हमारी बॉडी आराम से एक्सेप्ट करती है, हमारी सेल्स, इंटेस्टाइन। और क्योंकि हमारी आंखें, हमारा ब्रेन और हमारी जीभ, ये तीनों साथ साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, सिंक्रोनाइज्ड वे में। तो यदि मैं बार बार दाल चावल खा रही हूँ, तो जानी पहचानी चीज है, तो मेरी आंखें उसको दाल चावल को देखेगी, ब्रेन में रजिस्टर होगा, हाँ मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, जब तक मुझे बोलना भी नहीं आता था तब से ये चीज मैं खा रही हूँ। तो फिर मेरे इंटेस्टाइन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, सेल्स को वो लाइक करता, सेल्स भी उनको लाइक करते। और कुछ अच्छे से अच्छा पोटेंट न्यूट्रिशन, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन भी एकदम आंखों के सामने लेके आओ, पर वो चीज अजनबी है, न्यू है, तो सेल्स उसको स्ट्रेंजर्स की तरह लेते हैं। तो उसको ना थोड़ा धीरे धीरे लेना स्टार्ट करना है आपको। और आपके प्रोस्पेक्ट को, या जिस किसी को आप रेकमेंड कर रहे हो, उनको पूछो, हफ्ते 10 दिन हैंड होल्डिंग स्टेज है, तो कभी कभी उनको कुछ हीलिंग क्राइसिस महसूस होंगे, कभी कुछ डिस्कम्फर्ट भी महसूस हो सकती है। वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं, पर हमारे शरीर में और हमारे ब्रेन में उसको अभी तक रजिस्टर किया नहीं है, इसलिए।
तो थैंक यू कल्पना जी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जैसे हम छोटे बच्चों को भी जो वीनिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीड से नॉर्मल फीड में लेके जाते हैं ना, तो जो भी बॉटल होता है फीडिंग का, पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बच्चा उसके साथ खेलने लगता है, उसके कलर के साथ वो फेमिलियर हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर थोड़ा दूध या पानी डाल के, सिपर हो या बॉटल हो, हम उसको देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन के, आंखों की और सबको एक्सेप्ट हो वो चीज। तो एक्सेप्टेंस एक ही बार में जल्दी जल्दी ऐसे हो नहीं जाता। तो ये स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करना है, पर बीच में रोकना नहीं है, क्योंकि बीच में रोकोगे तो रिजल्ट्स आपको आएंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात। नॉट ओनली परचेसिंग सप्लीमेंट्स एंड रिकमेंडिंग इट, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और उनको एक हैप्पी मोड में आपको लेके जाना है एज अ एफबीओ। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तभी फॉरएवर का सक्सेस इसमें छुपा हुआ है कि आप अपने टीम के साथ, और जिस किसी को आप कस्टमर्स को रिकमेंड कर रहे हो, उनके साथ आपने कितना अच्छा रिश्ता बनाया है। उसके ऊपर आपका फॉरएवर के बिजनेस का सक्सेस भी निर्भर करता है। तो इट्स नॉट अबाउट मैकेनिकली जस्ट गिविंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड। ओके। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है बात। सर नेक्स्ट स्लाइड। आकृति रस्तोगी जी का मैंने सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है। नेक्स्ट है निहारिका शर्मा। आर यू देयर निहारिका? निहारिका पूछ रही है कि कैन एलोवेरा जेल बी यूज्ड। उन्होंने ना दो तीन कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की है। एक तो हाइपर कैलेमिक पेशेंट्स, उनके लिए मैं बोलूंगी नो। ओके। क्योंकि क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है इस कंडीशन में। इसलिए नो मैं बोलूंगी। फिर भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को पूछ के निर्णय कर सकते हो, बिकॉज एलोवेरा के बॉटल के ऊपर सोडियम पोटेशियम का कंटेंट क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। तो जिस किसी को यह हाइपर कैलेमिक कंडीशन है, या एकेआई, एकेआई मीन्स एक्यूट किडनी इंजरी है, उनके एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है एकेआई, वो लाइटली रिवर्सिबल कंडीशन है। पर जो सीकेडी है, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसके लिए भी बिग नो है। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के क्लोज कनेक्शन में इस बारे में चर्चा कीजिए। ओनली ऑन हिज रिकमेंडेशन यू कैन गिव। और चौथा उन्होंने कंडीशन बोला हुआ है लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस में दिया जा सकता है, पर थर्ड ग्रेड का जो उन्होंने बोला है उसके लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो उन्होंने बोला है, उसके लिए भी अगेन आई वुड से आपके फिजियोलॉजी जो फिजिशियन है, या आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो कोई डील कर रहा है आपके साथ, उनके साथ आराम से बैठ के इसके बारे में चर्चा करो। आपके सीनियर को लेके जाओ, और यदि नो बोलता है, आपके डॉक्टर नो बोलते हैं स्ट्रांगली, तो इसको बिल्कुल नहीं देना है फिर। क्योंकि जो किडनी के रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल। उनको नॉर्मल दाल भी आप नहीं दे सकते, उनको नॉर्मल लीफ वेजिटेबल्स भी आप गाढ़ी मात्रा में दाल का पानी देने के लिए बोलते हैं, वो भी कम कम मात्रा में, नॉर्मल पानी भी उनको कम मात्रा में दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि हाई पोटेंशियल वाला न्यूट्रिशन वो कितना ले सकते हैं ना। पोटेशियम और सोडियम जिसमें ज्यादा है, वो किडनी के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। सो फॉर दिस यू हैव टू स्ट्रांगली कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने मन से मत दीजिए किडनी और लिवर और एकदम बड़े बड़े लोगों को क्यों डील करना है। आप एक एफबीओ हो, तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स को चूज कीजिए, और नॉर्मल नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहने के लिए, अपना एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट्स के लिए आप ये प्रोडक्ट्स आराम से रिकमेंड कर सकते हो। पर जो बड़ी बड़े चैलेंजेस है, या बड़े बड़े नेम्स, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जो विषय है, उसके बारे में हम ना ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। दिस इज बिकॉज आर प्रोडक्ट्स आर नॉट ड्रग्स और मेडिसिन, दे आर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। और कुछ वल्नरेबल हेल्थ कंडीशंस में डॉक्टर्स के एडवाइस के बाद ही देना है, अदरवाइज मत दो। दैट इज द बेस्ट। कितनी करोड़ों की पॉपुलेशन है, कितने लोग हर दिन 18 साल के ऊपर के हो रहे हैं, कितने लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, कितने लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं। सबको दूसरे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करो ना, रैंडमली रिकमेंड कर सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स, एलो आरजी आर्टिक सी प्लस बीपोलन फील्ड्स ऑफ ग्रीन नेचर मीन, सबको दे सकते हो। पर चैलेंजेस वाले लोगों को आप एकदम से डील ना करो, बिकॉज आई डोंट नो योर बैकग्राउंड, योर एज ग्रुप, आपको कितनी नॉलेज है मेडिकल साइंसेस में। तो एकदम से क्रिटिकल पेशेंट्स को ना डील करो, तो दैट विल बी अ वाइजर डिसीजन। ओके। आई थिंक निहारिका
आई हैव आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन निहारिका जी का है कि बेस्ट टाइम टू कंज्यूम सी प्लस। तो सी प्लस जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो एक विटामिन सी है। हमारा शरीर विटामिन सी बना नहीं सकता और स्टोर भी नहीं कर सकता। और कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसका डेली इंटेक बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जब हम पोल्यूशन का मार झेल रहे होते हैं, तो और फ्री रेडिकल्स होते हैं पोल्यूशन में, या फिर घर के अंदर भी फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, तो इस इन सब से फाइट करने के लिए सी प्लस ब्रेकफास्ट के साथ आप लो। जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ले लो इसको। एक च्यूएबल टैबलेट है, और इसका कोई स्पेसिफिक फूड कॉम्बिनेशन के साथ लो मत लो ऐसा नहीं है, बट बिकॉज इट इज एसिडिक, यदि आपने मिल्क शेक लिया है या दूध पिया है तो एकदम से सी प्लस ना खाओ, बिकॉज वो विरुद्ध आहार हो जाता है, क्योंकि आप एसिड और अल्कली साथ में नहीं लेते ना। तो दैट इज अ कॉमन सेंस। तो यदि आपने अभी अपना अल्ट्रा लाइट शेक पिया है और आपको घर से बाहर निकलना है, तो सी प्लस की टैबलेट आप रख लो अपने पर्स में, अपने जेब में। 3-4 घंटे बाद कभी भी ले लेना, बिकॉज आप पोल्यूशन में तो आराम कहीं भी जाते ही हो, पोल्यूशन हर जगह है। इट्स अ च्यूएबल डिलीशियस टैबलेट, तो कभी भी ले लो, पर दूध के साथ एकदम से मत लो बस। इसके अलावा ऐसा कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, किसी भी चीज के साथ ले सकते हो। वो पानी में घोल के भी ले सकते हो आप, और ऐसे मुंह में रख के आराम से वो घुल जाती है, तो नो प्रॉब्लम विथ सी प्लस। आंवले की बनी है, आंवला एंड हेस्पेरिडिन, तो बहुत अच्छी टैबलेट है वो। हेस्पेरिडिन तो अच्छा होता है, जिन लोगों को हाई बीपी है वो तो 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि हेस्पेरिडिन इज रेस्पॉन्सिबल, वो अच्छा होता है बीपी वालों के लिए। तो सिर्फ आर्टिक्सी और आरजी और एलोवेरा जेल तो 2 ही दो, पर आप हाई बीपी वालों को सी प्लस भी आराम से रिकमेंड कर सकते हो। जिनको लो भी है उनको दे सकते हो, उनको हनी के साथ भी दे सकते हो। एक अच्छा ड्रिंक भी बन सकता है उसका ये। जाते जाते मैं टिप दूंगी कि पानी के अंदर सी प्लस की एक टैबलेट डाल दो और थोड़ा हनी डालो, और वे अच्छा एक डिलीशियस ड्रिंक बना के सिप सिप कर सकते हो होल डे। दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। फिर उन्होंने और एक सवाल पूछा है निहारिका जी ने कि प्लांट प्रोटीन फॉर अर्ली सीकेडी पेशेंट्स। अगेन किडनी वाले पेशेंट्स है, सीकेडी वालों को, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज वालों को आप प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं, रिकमेंड करते भी है। जो रीनल डाइटिशियंस होती है उनके साथ में काम भी करती हूँ, तो देते हैं। बट अगेन वो किस एज ग्रुप का बंदा है, उसके किडनी की क्या कंडीशन है, उसके सारे पैरामीटर्स क्या कहते हैं, वो सब देखकर ही देना है। रैंडमली जस्ट बिकॉज प्लांट प्रोटीन सीकेडी के पेशेंट्स को दिया जा सकता है, आप ऐसे उठ के मत दीजिए। कंसल्ट डॉक्टर एंड तब उसके बाद दो, ठीक है? दैट इज ऑलवेज गुड। और दैट इज वाइजर ऑलवेज। यू कांट प्ले विथ एनीबडीज हेल्थ, इसलिए ये मैं बार बार बोल रही हूँ। और फिर उन्होंने पूछा है हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। तो हाइपर पिगमेंटेशन भी अलग अलग वजह से होता है। एक तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हो सकता है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है, कोई एनीमिक होता है तब भी उनको हाइपर पिगमेंटेशन होता है, किसी किसी को सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस होता है, बटरफ्लाई मिलाज्मा होता है। तो पिगमेंटेशन कई सारे कारणों से हो सकता है। तो वो पहले कारण जानना जरूरी है, और उसके बाद में रीजन जानने के बाद आप आराम से दे सकते हो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में तो वही है, पिगमेंटेशन हो चाहे डर्मेटाइटिस हो, एलोबेरी नेक्टर, एलोवेरा जेली प्लस प्रोपोलिस टैबलेट्स, बी पोलन, आर्टिक्सी, सी प्लस, R3 फैक्टर। यदि पिगमेंटेशन है तो R3 फैक्टर दे सकते हो। R3 फैक्टर अभी अवेलेबल है क्या, आई एम नॉट हैविंग आइडिया, बट होगा तो दे सकते हो। मतलब वो टॉपिकल एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है। और डे प्रोटेक्शन लोशन है। यदि आप R3 फैक्टर किसी को भी रिकमेंड कर रहे हो स्किन कंडीशन को, तो पहले तो अच्छे से एलो एवोकाडो सोप से या लिक्विड सोप से फेस को धोना है, उसके बाद R3 फैक्टर लगाना है। R3 फैक्टर लगाने से स्किन पील होती है। ओके, एच है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, मतलब जो फ्रूट एसिड्स होते हैं उसका पील होता है, मतलब ऊपर की डेड स्किन निकल जाती है। तो जब डेड स्किन निकली हुई कंडीशन में आप घर से बाहर निकलोगे तो फ्री रेडिकल्स का अटैक और हार्श सनरेज का अटैक एकदम से हो जाएगा। तो डे प्रोटेक्शन लोशन इस्तेमाल किए बिना मत जाना, और रात को जेली और प्रोपोलिस से फिर से एक बार अच्छे से वॉश, फेस वॉश करने के बाद इस्तेमाल करना है। ये केयर लेनी है। और पिगमेंटेशन वालों को आप नेचर मीन भी सजेस्ट कर सकते हो। पिगमेंटेशन की वजह क्या है वो जानना जरूरी है पहले,
वो आराम से जानी जा सकती है। आपका ब्लड टेस्ट करने से काफी कुछ पता चल जाता है। मैं तो बोलूंगी सारे ही एफबीओस को अपना अपना ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। एक बार ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें डिविएटिंग है, मतलब आपका B12 कैसा है, D3 कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, ट्राइग्लिसराइड है कि नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रेंज में है या कुछ डिविएशन है। इवन यंगस्टर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस दीज डेज। इसलिए रैंडमली बात ना करते हुए, जब उनके बॉडी का खुद का फिजिकल मेजरमेंट एकदम आंखों के सामने होता है ना, तो recommendations become easy for us, because we are also not talking in the air and they will also not feel otherwise कि ऐसे कैसे उठ के मुझे बोल दिया कि आर्टिक्सी लो। क्योंकि ओमेगा की कैप्सूल्स तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो एक एफबीओ हो जो 12th फेल या 10th फेल हो या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, वो सडनली किसी को इस तरह बड़े बड़ी चीजें रिकमेंड करने लगेगा ना, तो लोग थोड़ा डाउट करते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिजनेस में कम हो सकता है। तो बेटर ये है कि एक ब्लड टेस्ट करवा लो, सारा कुछ आ जाएगा उसमें। उसके बाद में इट बिकम्स इजी फॉर यू टू टेक डिसीजन। अपने सीनियर के साथ बैठ के कंसल्ट करो, या कोई जिम में जा रहे हैं तो जिम के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वहां पे डाइटिशियंस भी होती है, थोड़ा नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे 2-3 लोगों के साथ चर्चा करके आराम से ये प्रोडक्ट्स आप विदाउट एनी डाउट्स रिकमेंड कर सकते हो। अभी हो रहा है 8:45। आई थिंक अभी तक के सारे सवालों का जो पहले से पूछ के रखे थे लोगों ने, उनका मैंने जवाब दे दिया है। बावजूद इसके यदि किसी को कुछ स्पेसिफिकली पूछना है तो यू आर फ्री, आई विल बी हैप्पी कि किसी को कुछ इस तरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो। You बाय द वे, can आई एम कंज्यूमिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स एंड आई एम यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स ऑन माय स्किन एंड यू कैन सी द स्किन कंडीशन। you can type in the chat if you have a question. यस यू कैन। We'll only take 2 questions, or if यस, doctor allows 3 questions. या बिकॉज ऑलरेडी 8:47, Yeah. सो नो प्रॉब्लम। So as a special case, we'll take 3 questions. And in the meantime, I would like to thank Rajiv Mehta, who made this PowerPoint presentation. और थैंक यू राजीव भाई। राजीव भाई हमारे डॉन है, तो उन्होंने यस। हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। बहुत जन ने मेरे को पूछा व्हाई डिड यू ओनली पुट क्वेश्चन टिल 17, क्योंकि हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है और हाँ कंक्लूड। पूछिए, पूछिए शबनम निशा जी। वॉइस पे, वॉइस मतलब कैसे पूछेंगे इसमें? नहीं नहीं, हाँ आप टाइप मतलब कर लो ना। टाइप करो, हाँ। आपका म्यूट किया होगा सर ने। टाइप योर क्वेश्चन। पैरालिसिस फॉलोइंग एक्सीडेंट नेक इंजरी, ये क्या पूछ रहे हैं सर? डॉक्टर कुमार नवले। हाँ, मिल्क से रिलेटेड आपने पूछा, मैंने बताया भी कि लोग बोलते हैं मिल्क, दूध नहीं पीना है, तो किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो मत पियो। या इफ यू आर नॉट श्योर कि कहाँ से आप मिल्क बाय कर रहे हो, उसकी क्वालिटी आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो ना पीना अच्छा है। क्योंकि मिल्क नहीं पी रहे तो कितने सारे और सोर्सेस अवेलेबल है कैल्शियम के लिए। आपके पास मोरिंगा है, आपके पास सोयाबीन है, सो मेनी दालें, बहुत सारी दाल है, एग है, यदि आप एग खाते हो तो। और पैरालिसिस फॉलोइंग एक्सीडेंट नेक इंजरी, उसके लिए सर फिजियोथेरेपी करना जरूरी है। और फिजियोथेरेपिस्ट के को ही आप हीट लोशन और एमएसएम दोनों दीजिए, जिसके साथ वो थोड़ा मसाज करेंगे। और जो सप्लीमेंट्स मैंने सजेस्ट की है, आर्टिक आरजी और एलोवेरा जेल, उनको दीजिए। तो डॉक्टर कुमार नवले है ना, उनका सवाल था। तो सर आई थिंक आप ये यूज करना स्टार्ट कीजिए। There's another question. मैम हाँ, माय मैं फादर इज अफेक्टेड विद पैनक्रियास कैंसर 4th स्टेज। 4th स्टेज में देखो एलोवेरा तो दे सकते हैं, पर 4th स्टेज है तो एक बार डॉक्टर से पूछो, सारे प्रोडक्ट बताओ। मैं तो यही बोलूंगी कि एकदम से क्रिटिकल पेशेंट्स को अपने मन से मत दो। वैसे एलोवेरा दिया जा सकता है, पैनक्रिया का कैंसर है तो थोड़ा थोड़ा यदि वो ले पा रहे हैं तो, बट फिर भी इट्स बेटर डॉक्टर से पूछिए। डाउन सिंड्रोम वालों को देखो ओमेगा की जरूरत होती है, पर वो अगेन कौन सा, मतलब एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। ये इस तरह के जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उनका क्या एज ग्रुप है, किस तरह की कंडीशन है। कुछ डाउन सिंड्रोम वाले बात नहीं करते, बट दे आर गुड इन, दे आर स्किल्ड वर्कर्स। तो वो सब देखकर फिर आप डिसीजन लीजिए।
बाकी आप एलोवेरा ओमेगा आराम से किसी को भी आर्टिक्सिट दे सकते हो डाउन सिंड्रोम वालों को। मैं भी 2 लोगों के साथ डील कर रही हूँ। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि दे आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। पर ऐसा हम दावे के साथ नहीं कह सकते, बिकॉज डाउन सिंड्रोम भी एक ऐसी कंडीशन होती है, वो एकदम से आपको मिराक्युलस रिजल्ट तो नहीं देखने को मिलेंगे। पर डिपेंड्स कि आप लंबे समय तक कंटिन्यू करते हो तो कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस उनके सुधर सकते हैं, कुछ मोटर मतलब हाथ पैर हिलने के जो प्रॉब्लम्स है वो उनके थोड़ा सा उनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट कंटिन्यूड रखना पड़ेगा उनको, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स दे कांट एक्सपेक्ट फॉर डाउन सिंड्रोम। I think it was amazing and outstanding. We have, one thing very good today. We have Daman also joining us, and Daman's ओके, team is also here. Abdul, Anjali, Akruti, and all, and these all youngsters who are doing wonders. And I got some good news that they might become supervisors by the end of this month. So वाओ, सो कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। and I think we should demand one thing from them also. यस, They should do one of the motivation training. हाँ करो, मोटिवेशन तो I मोटिवेशन ही think होता है। Akruti and Anjali and Abdul, Pallavi and all, I think we want youngsters to come and do a training for us, because we'll also get motivated, because today's youngsters, it's a youngsters century which is going on. So, Acha guys, how many like this idea of having Doctor's Day? Like especially a doctor coming and talking with all the knowledge. So just type 1 so we know exactly should we do it again or no. If you type 1, that means we'll know that we should have this again, maybe with another doctor. Wow. Excellent. Now, how many of you all would like to thank Meda for this particular training? Type 2. Meda, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो टाइप कर रहे हैं, आप ही देख लो। ठीक है। देखो ये 2024 में मेरा पहला और लास्ट सेशन था एफएलपी टीम के साथ, और मैं पूरे एफएलपी टीम का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इतने सारे लोगों के सामने कुछ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए चांस दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू, एंड यू आर ऑल रॉक स्टार्स, स्पेशली यंगस्टर्स। So, Meda, it's a really great pleasure. Not only that I love your body language, as I told you, and your personality is amazing, and the way you talk. And क्या अच्छा लगता है, वो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसका चेहरा देख के हमका मूड खराब हो जाता है। एटलीस्ट आपका एटलीस्ट आपका चेहरा देख के सब लोग खुश है। Forget the guys, even the girls are smiling. So it's a great. अच्छा, Daman also is saying hi to you. Hi Daman, how are you? Daman is going to give us some good news soon. Okay, Somebody that's great. through my agents, I came to know he's getting married. Oh, Anyway, I don't know. I mean, may news क्या है? Cost of फैलती रहती ना. वो no type कर रहे हैं. Anyway, so guys, Meda, I think anything else you want to tell? Then we'll close the seminar. And I'd like to thank the full team, especially Raji. प्रोडक्ट्स बहुत यूज करो कॉन्फिडेंटली। सारे प्रोडक्ट्स घर पे लाओ, खोलो, इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। एंड एज मिस्टर रेक्स हैज ऑलवेज रिकमेंडेड, the forever opportunity is all about use the products, share the products, and share the opportunity. So unless you use the products, you will not feel confident about recommending the products. तो इसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली यूज करना है। सारी की सारी रेंज अवेलेबल है हमारे पास, इंडियन अवेलेबल है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सप्लीमेंट, स्किन केयर, हेयर ऑयल तक भी आ गया है। सो फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और जितने भी पार्लर्स है, स्पाज है, और सभी के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो आपका खर्चा बच सकता है। तो गुड न्यूज इज अभी 30% हाइक होने वाला है सारे सैलून ट्रीटमेंट्स पे। तो क्यों ना हम हमारे ही प्रोडक्ट्स के साथ फेशियल और हेड मसाज और हेयर स्पा और ये सब करें, तो 30% बढ़ी हुई कॉस्ट हम इधर से निकाल सकते हैं ना आराम से, और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आप सबने सुना होगा ना, अभी 30% हाइक होने वाला है सभी सैलून रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में। Doc, I had a question from my side. यस। Because half these names of the illnesses went over my head. I could not understand half of them.
बट मेरे पास एक ही सिंपल सवाल है, आपने बोला था ब्लड टेस्ट करो, अभी ब्लड टेस्ट करने के कौन सा टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ब्लड में अलग अलग कंप्लीट ब्लड कंप्लीट प्रोफाइल होता है, उसमें थायराइड प्रोफाइल होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है। तो आपको इफ यू लव योरसेल्फ, मैं तो ये रिकमेंड करूंगी 2024 में लास्ट वीक में सारा पूरा कंप्लीट प्रोफाइल खुद का चेक कर लो। और आजकल तो एआई बेस्ड एक नूरा डायग्नोस्टिक है, वर्ली में है, मुंबई में, गुड़गांव में भी है, बेंगलोर में भी है, 3 प्लेसेस इन इंडिया। एआई बेस्ड है, वो पूरे फुल बॉडी स्कैन हो जाता है आराम से, और सारे टेस्ट अपने आप हो जाते हैं उसमें, और एक 40 पेजेस का रिपोर्ट जनरेट होता है, एंड दे गिव द सीडी ऑल्सो, जिसमें सब कुछ आता है आपका। सो दैट इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 19 to 20,000, ऑल्दो इट इज कॉस्टली, बट योर ह्यूमन बॉडी इज प्रेशियस, लाइक, सो वंस इन लाइफ टाइम यदि आप करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें कोई डॉक्टर का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं चाहिए। लिपिड प्रोफाइल आप आराम से कर सकते हो, थायराइड प्रोफाइल भी कर सकते हो। और आपको यदि लगता है कि आपको कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो कंसल्ट योर डॉक्टर, उनसे रिकमेंड करवा लो क्या क्या टेस्ट कराने हैं। पर इट इज ऑलवेज बेटर ना, कि जैसे मैं बोलती हूँ कि आई नेवर रिकमेंड पीपल टू गो फॉर मल्टीविटामिन, क्योंकि ऐसे रैंडमली मल्टीविटामिन का कोई रोल नहीं होता। बिकॉज आपके शरीर में कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, कितना सेलेनियम चाहिए, कितना जिंक चाहिए, कितना क्या चाहिए, ये लेट योर ब्लड स्पीक। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे ही, आपको बिना देखे बिना जांचे कैसे पता चलेगा? मल्टीविटामिन रैंडमली दे रहे तो हाइपर विटामिनोसिस इज ऑल्सो टॉक्सिक, वो भी अच्छा नहीं होता है। मेनी पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस। सो कभी भी मल्टीविटामिन किसी को रेकमेंड मत करना। हमारे पास अभी तक है भी नहीं मल्टीविटामिन, पर आगे आएगी शायद, तब भी वो आपका ब्लड पूरा टेस्ट करने के बाद ही आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है कौन सा क्या है। मान लो आपका कैल्शियम ठीक है, B12 ठीक नहीं है, पर आपका D3 ठीक है, और जिंक ठीक नहीं है, या सेलेनियम नहीं है, या और कुछ है, तो आपके पूरा ब्लूप्रिंट है, तभी आप आगे रिकमेंड कर सकते हो ना। तो वो मैं बोलूंगी कि आज का जमाना ही पूरा इस तरह का है कि आप रैंडमली कुछ भी बोल नहीं सकते, रैंडमली कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकते। दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। ओके, उसके लिए आप अल्ट्रा लाइट शेक दे सकते हो, एलोवेरा जेल दे सकते हो कैंसर के बाद रिकवरी के लिए। बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हमारे प्रोडक्ट्स आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी। Lovely, adding lovely information. If you can just send me a WhatsApp on what all tests we should do, so I'll post that ओके, same, like ओके, blood test, whichever, because it all goes over my head. So if you can यस let us know by WhatsApp, so I'll post it in the group. So सर, ब्लड everybody, टेस्टिंग क्यों? अभी तो पता है आई एम वर्किंग विथ रायन फर्नांडो, ही इज अ सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। विराट कोहली के जो डाइटिशियन है ना, उनके साथ में काम करती हूँ बेंगलोर में। तो द एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम इज विथ अस, आमिर खान, फरदीन खान, सारे, अभिषेक बच्चन, और पीटी उषा, और विमेन इंडियन क्रिकेट टीम भी हमारे क्लाइंट्स है। तो हम लोग ना आजकल नॉट ओनली ब्लड टेस्ट, वी आर रिकमेंडिंग देम टू गो फॉर जेनेटिक टेस्ट। 75 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, आपको क्या होने की संभावना है, आपके डीएनए में क्या है, वो रिवील करता है। वो 75 पेजेस का रिपोर्ट जनरेट होता है, और लाइफ में एक ही बार करना है। लाइफ में एक ही बार, क्योंकि आपका जो जीन्स में क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो वो भी एक वर्थ एक्सपेंडिचर है खुद के ऊपर। जेनेटिक टेस्ट वो भी नूरा में होता है, नूरा डायग्नोस्टिक वर्ली में है, एआई बेस्ड। और कुछ देखूंगी मैं, आपको कुछ कंसेशन भी दिला सकती हूँ, तो बिकॉज वी आर डीलिंग विद देम ऑन डे टू डे बेसिस। और दूसरा lovely. एक होता है माइक्रोबायोम टेस्ट। माइक्रोबायोम टेस्ट मतलब क्या, कि आपके इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर कितने फ्रेंडली बैक्टीरिया है, कौन से टाइप के कितने हैं, कितने नहीं है। कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स, मेमोरी लॉस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती है। तो आपका माइक्रोबायोम पूरा रिवील करता है कि किसके इम्बैलेंस की वजह से क्या हो रहा है। तो वो माइक्रोबायोम टेस्टिंग भी साल में एक बार कराना चाहिए। दैट्स अ पूप टेस्ट, मतलब आपका स्टूल्स का सैंपल वो घर से कलेक्ट करके ले जाते हैं, और इट टेक्स अबाउट 2 to 3 weeks टाइम। इवन जेनेटिक टेस्ट का भी आपको 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है, वो सारे रिपोर्ट्स आने में। और रिपोर्ट्स अच्छे से रिवील करके देते हैं वो लोग, मतलब आपके सामने सामने फेस टू फेस बैठ के, या एक जूम कॉल एक्सक्लूसिवली आपके लिए करते हैं। और फिर बेस्ड ऑन दैट दे रिकमेंड। क्योंकि हम लोग जब प्लेयर्स के साथ करते हैं ना काम, तो हम एक एक मसल ग्रुप के ऊपर काम करते हैं। इवन ओलंपियन सुशील कुमार इज ऑल्सो आवर क्लाइंट।
तो आप सोच सकते हो कि कितने प्रिसीजन के साथ हमें काम करना है। तो यदि आपको अपने खुद के ऊपर प्यार है, तो मैं तो बोलूंगी नॉट ओनली ब्लड टेस्ट, यू ऑल शुड गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑल्सो एंड माइक्रोबायोम टेस्टिंग ऑल्सो। हर बड़े शहर में ये अवेलेबल है। Microbiome testing will cost you somewhere around 7,000 to 8,000 rupees, और genetic testing 20,000 to 25,000, और ब्लड टेस्ट 5,000 से 7,000 का खर्चा है पूरा का पूरा करते हो तो। और नूरा डायग्नोस्टिक में जाते हो तो विदाउट जेनेटिक टेस्टिंग 19,000 to 20,000 का उनका फुल डे का वो पैकेज है, एक ही दिन में। बाद में डॉक्टर्स का कंसल्टेशन और आपका पूरा वो रिवील करके भी देते हैं जो भी कुछ है, दैट्स अ फुल बॉडी स्कैन। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जमाना है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, और मैंने भी करवाया था। तो उसमें फिर क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम रैंडमली खा रहे हैं, हम बोलते रहते हैं हाँ मेरे दादी को ये था इसलिए मुझे है, या इसने इसको ऐसा था, हमारे घर में तो ऐसे ही खाना बनता है। पर व्हाट इज योर डीएनए सेइंग कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी ये लैक्टोज इंटॉलरेंस भी माइक्रोबायोम टेस्टिंग में पता चल जाता है। तो मतलब क्या क्या आपको रिकमेंडेड है और क्या नहीं है, उसका भी बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आता है। माइक्रोबायोम टेस्टिंग का भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, और दैट हैज टू बी डन वंस इन अ ईयर और वंस 1.5 years में एक बार, क्योंकि यदि आप ट्रेवलिंग पर्सन हो तो। पर जेनेटिक टेस्टिंग तो हाँ, ये सुभाष ने करवाया था। सुभाष इज ऑल्सो वन ऑफ माई क्लाइंट्स, ही इज प्रेजेंट हियर, ही इज फ्रॉम अबू धाबी। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिला है, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार ही इज फॉलोइंग द डाइट। और 20 years से उनको डायबिटीज था, उनको ब्लॉकेजेस थे कुछ, और बीपी की भी टेबलेट्स उनको चल रही है। ही इज अबाउ 60 नाउ, बट ही इज गोइंग फॉर ट्रेकिंग ऑल्सो। अभी रिसेंटली वो तोरना राजगढ़ का ट्रेक करके आए हैं, 12 घंटे कंटिन्यूस चल रहे थे। तो दिस काइंड ऑफ अमेजिंग रिजल्ट्स विल कम आउट इफ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, because health is wealth. So thank you very much, all of you. I hope nobody has any questions. I think we can take. वही तो मैं बोल रही हूँ, गट फ्लोरा के लिए हमारे पास प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक दिया जा सकता है, पर वो माइक्रोबायोम टेस्टिंग करने के बाद दो तो इट मेक्स सेंस। मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 2-3,000 खर्चा करने की बात नहीं है वो। पर है हमारे पास एक्टिव प्रोबायोटिक, आप दे सकते हो अलोंग विथ एलोवेरा जेल, गट बैक्टीरिया सुधारने के लिए। And you can follow me on Instagram, Medha7125, and I also have a small YouTube channel, Medha Wellness Forever, Medha Deshpande Wellness Forever. क्या पूछा है आपने? ये स्किन का जो डिस्कलरेशन है ना, वो कोई कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होता है। पैची स्किन जिसको हम बोलते हैं, पैची स्किन मतलब जैसे यहाँ पे पिगमेंटेशन है, यहाँ की स्किन ब्राइट है, कभी कभी नोज शाइन होता है, कभी यहाँ पिंपल्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। आप नेचर मीन बी पोलन अलोंग विथ नेक्टर या एलोवेरा जेल आप ले सकते हो। C+ भी आप डेली खाना ना भूलो, क्योंकि हम पोल्यूशन में जाते ही रहते हैं। तो फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचने के लिए ये बेहद जरूरी है। I think we should close now because otherwise they'll keep on asking questions. यस So, सर, guys, थैंक यू सो मच। one more good news is there that next month we'll have another Doctor's Day. We'll have दैट्स another अ ग्रेट Doctor's Day न्यूज। with another doctor. Of course, Medha will also be present there, and we'll have more and more information given to you. So, Medha, thanks a lot. You've been amazing. थैंक यू सर। And your personality, your at least डॉक्टर जाने को हम लोग खुश हो जाते हैं, नहीं तो कभी कोई डॉक्टर जाने को हम लोग नाराज हो जाते हैं, या हम खुश हो जाते हैं. So guys, if you want to say thank you to Medha, just say thanks in the chat and we'll close soon. Thank you guys. It was my pleasure meeting all of you. Maybe we'll have Muskan next time. Yes. No, Muskan is also she does the Amazing. She's training, and maybe amazing. I we think can I've get some spoken tips with from her her. once. And Daman to he's a rock star anyway. Yes. The So, money is hero. so you can see the amount of people saying thank you to you. Thanks. And these are from all over India. And I came to know somebody's from Abu Dhabi also, who was your Yes. client, which was amazing. Subhash. Subhash. Hmm. So thanks, Subhash, for joining. It was really great you joining us. And of course, Doctor is one of our, Medha is one of our top rock stars with us.
So thanks a lot, guys, and see you all soon. I don't want to close this, but everybody has to go somewhere. I'm wishing everybody a very happy New Year, because now New Year is going to come, and I don't know whether we'll meet again or no before New Year. So wishing everybody very happy and prosperous New Year. Yeah. Thanks, Good guys. night. Thank you all. Thank you. Good Bye. night. Bye. Bye bye.